Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. Let's begin our session today. Our today's topic is digital analytics, and in this topic, we have two readings and one associated case study. The two case studies are number one, raising the bar with analytics, and the second reading is digital analytics in professional work and learning. The associated case study's title is CDK Digital Marketing, Addressing Channel Conflict with Digital with Data Analytics. ठीक है जी? Okay, so let's begin with the discussion of the first reading. The title is Raising the Bar with Analytics. Now, when we start the discussion of the analytics, the first thing we all should understand that what do we mean by analytics? Analytics is basically, in very general terms, is a combination of the data and the software. So what we mean is that when we use the software to analyze the data available in order to come up with the needed information to make informed decision, then this process or this technique is called the analytics. Now, digital analytics means that the data which is being analyzed is the digital data that is collected from a variety of sources. Okay, we shall discuss these sources later on in our discussion. Okay, so let's continue. Okay, so this is the punchline of this reading that we are going to discuss. Okay, in this reading, what has been done is that a lot of managers have been surveyed and their opinion has been sought about the significant and the use of digital analytics in business organizations. So, most managers surveyed agree it's time to step up analytics use. What's more, a growing number of companies are viewing their data and analytics as assets with strategic value. तो एक चीज तो कंफर्म है कि जनाब मैनेजर जो हैं वो इस बात के साथ एग्री कर रहे हैं कि it is very important that digital analytics should be used. Okay, and the second thing is that they consider the data in the organization and analytics both as an asset that has some strategic value so that it can provide them competitive advantage. Okay, now what is the leading question or the most important question this reading is discussing? The leading question is how is analytics used in business is evolving. And some of the important findings of this reading is number one, more than half of managers surveyed strongly agree that their organization needs to set up analytics use. Number two, some companies are sharing their data and analytics with business partners. Three, most big data initiatives use a mix of external and internal data. Okay. So one important finding is that आधे से ज़्यादा जो मैनेजर्स जिनको सर्वे किया गया है, ठीक है, उनका ख्याल जो है वो ये है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्हें बिजनेस एनालिटिक्स को जो है वो सेटअप करने की और उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो है नज़र आ रहा है कि कंपनीज जो है वो अपने डेटा और एनालिटिक्स जो है वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करती हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स फॉर strategic reasons that we will see how it is being done. I also discussed the concept of big data some time ago. Big data is basically the unstructured data. Unstructured data means that the data which cannot be stored in some forms of in some kinds of tables so that we can set up the relationship among information or the data present in different tables, something we call the relational database. Okay,
So big data corresponds to the type of data which is unstructured, while the kind of databases we have available deals with the data that is structured. Okay. So another important finding is that the most big data initiatives are using a mix of external and internal data. Okay, Ji, move on. If you can see on your screen, I have highlighted the example of a company called Style Sleek. Okay. Now, what is a Style Sleek? Style Sleek is a website that helps visitors and members discover their style DNA through a style game in which users choose their favorite lifestyle images from a series of pictures, from swanky front doors to magazine covers to sports or elegant cars. The outcome of these selections is users' style DNA, which the sites then use to recommend apparel options culled from more than 200 retail partners, including Macy's, Nordstrom, Anthropologic, J. Crew, etc. ठीक है. So basically ये एक साइट है, ठीक है, जो कस्टमर से जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि जी उनका जो है वो स्टाइल क्या है, और इसके बाद उस एनालिसिस की बेस पे उसके जो डिफरेंट पार्टनर बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्ट है वो रिकमेंड करती है कस्टमर को बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ स्टाइल सीक दैट व्हाट इज गुड for the customer. Once again, it's an example of the use of analytics. Okay. Now, more than half of the survey respondents strongly agree that their organizations need to set up the use of analytics to make better business decisions. This is something we already talked about, that this is the one of the most important finding that the managers think that their businesses need to use digital analytics to make better informed decisions. Now, several forces are helping spur managers' interest in analytics, including increased demand, okay, increased market complexity. For example, omni-channel retailing that encompasses both digital and brick and mortar channels, and the availability of better analytics tools and data. And of course, if competitors are using data to gain an edge by making better or faster decisions that alerts the comparative landscape company faces. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रीडिंग जो है आपको बता रही है कि वो कौन से रीजंस हैं कि जिनकी वजह से मैनेजर्स का जो इंटरेस्ट है डिजिटल एनालिटिक्स में वो बढ़ रहा है. तो पहला जो इंटरेस्ट है वो तो ऑफ कोर्स जो है वो ये है कि मार्केट इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मार्केट जो है वो कॉम्प्लेक्स कैसे हो रही है? फर्स्ट वन एग्जांपल इज दैट द ओमनी चैनल. ठीक है, कंपनीज आर यूजिंग multiple channels to market and sell their products. Okay, so it is very important that we have some kind of data, some kind of analysis that could tell us that which channel is doing better and which channel is not doing better, so that we can actually optimize the use of our resources for increasing our sales. The second thing is that with the passage of time, there are better analytics tools, okay, and better quality data that has been available to us. So now it is important now that we should use the analytics and the associated tools so that we can have better information for informed decision making. And the third most important reason is that the your competitors are using the analytics. Okay, so if you are not using analytics, it means that you will be left behind in the competition. Okay, the demand for better analytics is shifting how some companies view their own and others' data. Many companies aim to become better producers of goods or services by using their own data in more effective ways. Okay? But some companies, such as StyleSeek, are beginning to change that paradigm. They are aiming to become better producers of data and analytics in part so that other businesses can use analytics in more effective ways. Such companies are enhancing their business models by viewing their own
analytics platforms their own expertise or knowledge about customer segments or products as assets with strategic and commercial value. ये बात हमने पहले भी की थी और यही बात यहाँ पे रीडिंग जो है हमको हाईलाइट कर रही है कि कुछ कंपनीज एनालिटिक्स को इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, ताकि अपने गुड्स और सर्विसेज की सेल्स को इंक्रीज कर सकें बाय गेनिंग इनसाइट अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर एंड द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं कि जो कि अपनी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को और अपने डेटा को एक स्ट्रेटजिक एसेट के तौर पर जो है वो कंसिडर करती हैं, ठीक है, जिसको वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी शेयर कर रही हैं, ठीक है, और इनका पर्पस जो है वो ये होता है कि वो जो दूसरे बिजनेसेस जो हैं, ठीक है, वो भी जो है वो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो इनको इंक्रीज कर सके, सो दैट एज अ होल market benefits, okay, not only the company that provides the data and analytics will benefit from it, okay, their partners will benefit from it and the market as a whole benefit from it, so that we, in a nutshell, we can say that the size of the market will increase, everyone in the market will benefit from it. Moving forward, okay, data sharing and innovation. Some companies are sharing their data and analytics with business partners in order to meet strategic objectives. इसकी अभी हमने जो है बात की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रीडिंग जो है वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके जो है उसको हाईलाइट कर रहा है कि जनाब के ये कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है एक कंपनी की जिसका नाम है वेल पॉइंट, ओके। WellPoint is converting administrative claims and authorization data into useful information about populations of patients and sharing this information with physicians and their care teams to aid their decision making and caregiving. This innovative and collaborative approach gives providers better visibility into the cost and quality of care their patients receive and reflects a major shift in the type of relationship WellPoint creates and maintains with its providers. तो अब यहाँ पे आप देखें कि एक ऐसी कंपनी कि जो कि बेसिकली जो हेल्थ केयर के जो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं, ठीक है, और उनके ऑथराइजेशन के ऊपर जो है वो काम कर रही है, ठीक है, वो इस डेटा को जो है वो फिजिशियंस और हॉस्पिटल्स के साथ जो है वो शेयर कर रही है, ठीक है। पर्पस जो है वो ये है कि जब ये डेटा फिजिशियंस के पास जाएगा और हॉस्पिटल के पास जाएगा, ठीक है, तो वो इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि जनाब के जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट को जो है मेडिकल केयर जो दे रहे हैं, ठीक है, उसकी जो है वो पेशेंट्स को कॉस्ट क्या पड़ रही है, ठीक है। और जो कॉस्ट हम उनको मतलब बेसिकली जो वो इनकर कर रहे हैं उस कॉस्ट के अगेंस्ट जो है वो उनको जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज्ड हेल्थ एंड सो ऑन, वो बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, so that they can come up with more optimized healthcare options, right? which are more economical and could provide increased benefits to their patients. All right. Now, there is no need to say that when this happens, then the whole market will benefit from it. Okay. The customers will benefit from it. The hospitals will benefit from it. The physicians will benefit from it. And the well point, okay, the companies that actually process the insurance, health insurance claims will also benefit from it, okay, because the size of the market will increase as a whole. Moving forward, the reading says, in general, our survey data suggests that companies for which analytics has improved the ability to innovate are more likely to share data with partners and suppliers. तो रीडिंग जो है हमें बता रही है कि जनाब वो कंपनीज के जिन्होंने एनालिटिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इनोवेटिव कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया है, तो इस बात का ज़्यादा चांस है कि ऐसी कंपनीज जो हैं वो अपनी एनालिटिक्स और अपने डेटा को अपने बिजनेस पार्टनर्स और सप्लायर्स के साथ शेयर करेंगी, ठीक है। A number of companies we interviewed that are improving their ability to innovate with analytics are reaching beyond their own data to feed their analytics process. They combine their own hefty data sets with external data. This approach to data, as it turns out, is typical of most big data projects. अच्छा, अब यहाँ पे वो कंटिन्यू कर रहा है उस डिस्कशन को कि ऐसी कंपनीज के जो
एनालिटिक्स को इस्तेमाल कर रही हैं अपनी इनोवेटिव कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, वो कंपनीज जो हैं अपने एनालिटिक्स के प्रोसेस में सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डेटा को इस्तेमाल नहीं करती, वो आउटसाइड डेटा को या एक्सटर्नल डेटा को अपने इंटरनल डेटा के साथ कंबाइन करती हैं, so that the use of analytics can provide them better information. Okay, so as I talked about earlier, the big data. So here, when we say big data, the big data can be inside the organization. Remember, the big data is the unstructured data. So this data, unstructured data, can be inside the organization and it can be outside the organization. So if the organizations are really willing to improve their innovative capabilities by employing digital analytics, then these organizations are using big data that is procured from inside the organization and from the outside the organization. Okay. Now, another trend that this reading highlights: a majority of respondents in all industries surveyed believe strongly that their organizations need to step up the use of analytics. तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि अब जब हम एनालिटिक्स का यूज़ की बात कर रहे हैं कि जनाब के किन इंडस्ट्रीज़ में एनालिटिक्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या किन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एनालिटिक्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो हम ये देखते हैं कि हर इंडस्ट्री में, ठीक है, मैनेजर्स या जो बेसिकली जो कंपनीज के जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये बात कर रही है कि जनाब हर इंडस्ट्री में एनालिटिक्स की ज़रूरत है। ठीक है, दैट मीन्स के डिजिटल एनालिटिक्स इज समथिंग that is beyond the choice or the type of industry. Every type of industry needs digital analytics to enhance their competitive landscape. Okay जी। इसके बाद ये जो highlighted है, 10% of respondents say that their organization's big data projects use only internal data and just 2% say only external data sets are used. That means कि जनाब मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जो कि एनालिटिक्स को अपनी इनोवेटिव कैपेबिलिटी इस्तेमाल एनहांस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनालिटिक्स के अपने प्रोसेस में जो है वो दोनों सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, एनालिटिक्स एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन. Interestingly, among the 16% of respondents who strongly agree that analytics is helping their organizations innovate, 85% also strongly or somewhat agree that the use of analytics is changing the way their company does business. Okay, ये बात हमने पहले ही की थी कि जब आप एनालिटिक्स को आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ठीक है, then it also changes the way you do business. Okay, this is being reiterated by this reading at this point. Okay. The growing appetite for analytics reflects optimism that traditional modes of decision making, those relying to a greater extent on experience and intuition, can be effectively enhanced with analytics. तो अब यहाँ पे रीडिंग हमें बताती है कि पहले जो हम डिसीजन मेकिंग जो है जो किया करते थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उसमें हम बहुत हद तक जो है वो रिलाय करते थे अपनी मैनेजरियल इंट्यूशन पर और एक्सपीरियंस पर, ठीक है। लेकिन अब with the emergence of analytics, the organizational decision making is no longer going to be entirely depend on the managerial experience and intuition. Rather, it will be enhanced, effectively enhanced by the use of analytics. मैनेजर्स ने जो डिसीजन लेने हैं उसमें वो अपने एक्सपीरियंस को और इंट्यूशन को इस्तेमाल तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो अपने एक्सपीरियंस को या इंट्यूशन को जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अब उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें एक्सपीरियंस और इंट्यूशन का ही फैक्टर नहीं होगा, बल्कि एनालिटिक्स उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन विल प्ले an increasingly important role in the managerial decision making. ठीक है जी। Okay. The finding that some respondents see analytics as both helping their organizations innovate and changing the way the company conducts its business suggests that analytics can have an effect on organizational behavior even beyond its influence on decision making. तो वही कह रहा है कि जनाब कि हमारे जो सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि एनालिटिक्स जो है वो ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प आउट करेगी, बल्कि
एनालिटिक्स का जो इन्फ्लुएंस है, इट कैन गो बियॉन्ड the decision making, because the analytics can also help businesses change the way they do business and increase their innovative capability. Organizations that innovate and change their business conduct in part because of analytics adopt what are known as emergent or deliberate strategies, and in some cases both. अब यहाँ पे जो है वो क्या बात कर रहा है, दो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज की, कि जब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एनालिटिक्स को इस्तेमाल करना शुरू करती हैं या डिजिटल एनालिटिक्स को अडॉप्ट करती हैं, तो वो किस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज की बात कर रहा है, इमरजेंट और डेलिबरेट, ठीक है। अच्छा, इमरजेंट and deliberate strategies have different characteristics to which managers need to pay attention. अब वो यहाँ पे differentiate करने की कोशिश कर रहा है उन दो types of strategies को, ठीक है। Emergent strategies typically require openness to new ideas as well as a willingness to pursue opportunities even when they do not fit neatly with pre-existing plans. Deliberate strategies demand a clear vision about goals and the means of achieving them, ठीक है। तो अब इमरजेंट स्ट्रेटजीज में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर एक कंपनी इमरजेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती है व्हेन यूजिंग द डिजिटल एनालिटिक्स, तो पहली कंडीशन जो है वो ये है दैट दे शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज, ठीक है। एंड द सेकंड कंडीशन इज they should be or they must be willing to pursue opportunities even when they do not fit neatly with their plan. इसका मतलब जो है वो ये है कि इमरजेंट स्ट्रेटजी इज अ रिस्क टेकिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, कि जहाँ पे आप जो है ओपन है, ठीक है, यू वांट टू basically try the new ideas, okay, and you are trying to pursue new opportunities even if you do not have a pre-existing plan to go after it, okay. In contrast, in deliberate strategy, ठीक है, what is the first requirement of a deliberate strategy? You must have a clear vision about goals and the means of achieving them. That simply means that deliberate strategy is a kind of risk averse strategy in which it is a requirement that there must be a clear vision, ठीक है, कि जी आपके गोल्स क्या हैं और आप इन गोल्स को जो है वो अचीव कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट द रीडिंग इज सेइंग कि जी आप जो ऐसी कंपनीज की जो कि डिजिटल एनालिटिक्स को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, वो इन दो में से किसी एक स्ट्रेटजी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इन सम टाइम दे कैन यूज बोथ द स्ट्रेटजीज, ठीक है जी। अच्छा, ये बात हमने जो है वो आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि जनाब जो जब आप बात कर रहे हैं डिजिटल एनालिटिक्स की, ठीक है, और स्ट्रेटजीज की, तो कंपनीज जो हैं वो किसी एक स्ट्रेटजी को या दोनों स्ट्रेटजीज को सेम टाइम में इस्तेमाल कर सकती है। Whether or not managers are intending to use analytics to improve decision making, innovate, or achieve important strategic objectives, there are clear takeaways from the survey finding. One is that the pressure to develop more effective decisions through analytics is growing across industries. Another is that as companies use analytics to improve their ability to innovate, they also tend to collaborate more through their use of analytics. Analytics become an important medium through which organizations interact with both internal and external stakeholders. Thus, organizations that innovate with analytics don't merely increase their use of analytics in decision making, they also change the way they behave as organizations. तो अब यहाँ पे वो जो उसकी जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है या जो हमारा डिस्कशन है उसको जो है वो एक तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो रीडिंग का जो ऑथर है वो समाप्त कर रहा है, ठीक है। वो ये कह रहा है जनाब कि आप एनालिटिक्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं या यहाँ नहीं करते, ठीक है, ये एक सेपरेट बात है, लेकिन एक चीज़ जो है वो क्लियर है कि जो डिजिटल एनालिटिक्स है और जो उसका यूज़ है, इंक्रीजिंग यूज़ जो है, ठीक है, उसकी जो है वो मल्टीपल रिपरकशन है, ठीक है। पहला जो है वो ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, और इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज दे आर फीलिंग प्रेशर दैट दे नीड टू यूज डिजिटल एनालिटिक्स टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड और इफेक्टिव डिसीजन, ठीक है। सेकेंडली जो है वो ये है कि कंपनीज जो है वो एनालिटिक्स को जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं, whether you use analytics or not, that's your particular decision, but the companies are using analytics to improve their ability to innovate.
ठीक है। इसके साथ साथ कंपनीज जो हैं वो एनालिटिक्स को इस्तेमाल कर रही हैं टू कोलैबोरेट विद देयर बिजनेस पार्टनर्स एंड सप्लायर। ठीक है। इसके साथ साथ कंपनीज एनालिटिक्स को इस्तेमाल कर रही हैं टू इंटरेक्ट विद देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। सो ऑथर एट द एंड ये कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एनालिटिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इनोवेशन कैपेबिलिटी को एनहांस करती हैं, वो ना सिर्फ अपने जो यूज ऑफ एनालिटिक्स है, ठीक है, उसको जो है वो इंक्रीज करती हैं, ठीक है, so that they can make informed and better decisions. They also use analytics to change the way they behave as organization, or we can say they change the way they conduct their business. Okay ji. So that was all about the reading number 1. And now we shall move on to the reading number 2. And the reading number 2, the title is Digital Analytics in Professional Work and Learning. Okay ji. Moving forward. All right. Okay, ji. So let's begin with the introduction. What this reading is talking about. Okay, again, this reading is basically a research article. So, as usual, we are going to only discuss the relevant parts of this article. Okay, related with our discussion of digital analytics. So, professional practice in fields ranging from health and education to urban planning and engineering are being transformed by two interlacing technological forces: big data deluge and a software algorithm that are collecting, comparing, and calculating them to make predictions and even decisions. तो अब आर्टिकल जो है कहता है कि जनाब के यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, ठीक है, चाहे वो हेल्थ, एजुकेशन और प्लानिंग, so many industries the article is talking about. वो कह रहा है कि जनाब के across the industries two important factors, the two important phenomena are changing everything. Okay. Especially the focus of the article is on the professional practice. ठीक है, कि हम जो business जिस तरह से conduct करते हैं, ठीक है, हमारी जो professional practice हमारी जो है, ठीक है, जो उनको हम जिस तरह से जो है conduct करते हैं, ठीक है, उस पर जो है वो दो चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा impact आ रहा है. पहली चीज़ है big data और second is the software algorithm that analyzes this big data. ठीक है. एंड ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, ठीक है, कि द डिजिटल एनालिटिक्स इज बेसिकली refers to the analysis of the data by the software. ठीक है, and this is what the reading is talking about, the linkages of software and data, what we refer to in this article as digital analytics. Okay. While technology has always been important to professional practice, it is arguable that the speed and scope of innovation in digital analytics is at a faster pace and more pervasive than we have seen previously. रीडिंग जो है वही कह रही है जनाब कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो थी, इट हैज़ ऑलवेज बीन इम्पैक्टेड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन अब डिजिटल एनालिटिक्स जितने फास्ट पेस के साथ मूव कर रही है, ठीक है, और जिस तरह से जो है वो एक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो डिजिटल एनालिटिक्स को जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं, ठीक है, दैट सिंपली मीन्स के अब प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, इट इज मच मच हायर देन इट वाज इन प्रीवियस ईयर्स. आगे चलते हैं जनाब. Examining the effects of digital technologies on work organizations and practice has been a concern for many years. This is something that we talked about earlier. Okay. Focusing on issues such as the de-skilling slash professionalizing and reskilling slash professionalizing of the workforce and the resultant struggle over shifting statuses and rewards. अब ये वो दो तीन इम्पोर्टेंट एरियाज हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के, ठीक है, कि जिनको जो है वो टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डिजिटल एनालिटिक्स जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, कि आपने जो है वो अपनी वर्क फोर्स को जो है वो उसको जो है वो मोर प्रोफेशनल जो है वो आपने उसको कैसे बनाना है, ठीक है. डी स्किलिंग का मतलब जो है वो ये है कि आपने एक स्किल जो सीखी हुई थी, लेकिन अगर वो स्किल जो है वो आउटडेट हो गई, ठीक है, तो अब आपने जो है वो उस स्किल को जो है फर्दर इस्तेमाल नहीं करना, एक तरह से कह लेंगे जनाब कि अपना आपको डी स्किल करना है या उस स्किल को अपने दिमाग से जो निकालना है, and you need to re-skill yourself. That is, you
You have to de-learn something and relearn something in order to become a better professional in the organization in which you are working. Similarly, when you de-skill and re-skill, ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका जो स्टेटस है और जो रिवार्ड आप गेन करेंगे, ठीक है, वो भी चेंज होंगे. So these are the important areas of professional practice that we need to focus on more diligently, especially when we see the increasing use of digital analytics. Okay. Now, this article aims to set out some key issues, particularly relevant to our understanding of professional practice, knowledge, and learning posed by digital analytics. So, this is the objective of this article, and we see what are some kind of particular issues, okay, related with the professional practice, knowledge, and learning, okay, that are being raised because of the increasing use of digital analytics. Okay, ji. Moving forward. Okay. Okay. Digital analytics are working increasingly to transform the work roles, knowledge practices, and labor processes of professional practice in ways which are not always explicitly planned. ठीक है. अब यहाँ पे रीडिंग जो है आपको बता रही है, ठीक है, कि the increasing use of digital analytics is transforming many things related with the professional practice. ठीक है, कौन कौन सी चीजें इनको चेंज हो रही हैं, वर्क रोल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, नॉलेज प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं, ठीक है, और लेबर प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, ठीक है. और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये जो चेंज आ रहा है, ठीक है, ये चेंज जो है ये इतना रैपिडली आ रहा है कि बहुत सारा मतलब बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस जो है वो आपने प्लान नहीं किए हुए होते, ठीक है. But because the industry is using digital analytics in ways that you were not aware of, okay, so in order to stay competitive, what you need to do is that you need to change your professional practice as well, and these changes are not always planned. Okay. The next we talk about the big data and the software code. ठीक है, बिग डेटा की जो है वो हमने पहले भी जो है वो हमने बात की थी, और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो दोबारा यहाँ पे जो है वो आर्टिकल जो है डिस्कस कर रहा है. ठीक है, बिग डेटा की को वो किस तरह डिफाइन करता है. बिग डेटा टिपिकली रेफर्स टू डेटा that are collected in massive volumes, working at high velocity, and are characterized by diverse variety, exhaustive scope, फाइन ग्रेन रेजोल्यूशन एंड इंडेक्सिकल आइडेंटिफायर्स. ठीक है, तो ये यहाँ पे अब बिग डेटा जो है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है, बिग डेटा हैज मैसिव वॉल्यूम, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, it comes with high velocity. High velocity का मतलब जो है वो ये है, every day you have, or maybe every passing hour you have a very high amount of data that is coming with to you at a much higher speed, or it is being available to you at much higher speed. ठीक है, and are characterized by diverse variety. ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा जो है वो आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है. ठीक है, पहली चीज, बिग डेटा इज मैसिव. ठीक है, मतलब इसका साइज जो है बहुत लार्ज होता है. ठीक है, नंबर टू, बिग डेटा इज अवेलेबल एट अ मच हायर स्पीड, और आप कह सकते हैं कि जनाब के विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर एंड मोर डेटा बिकम्स अवेलेबल टू यू. ठीक है, एंड नंबर थ्री, द बिग डेटा हैज अ वेरी लार्ज और वेरी डाइवर्स वैरायटी. ठीक है, तो एक तो होता है कि डेटा एक ही तरह का होता है. ठीक है, बिग डेटा के साथ ऐसा नहीं है. बिग डेटा हैज वैरायटी ऑफ डेटा अवेलेबल टू यू. ओके, मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं, आप सोशल मीडिया पे जो डेटा आ रहा है वो अलग आ रहा है, ट्वीट्स हैं उनका डेटा जो है वो अलग आ रहा है. अगर आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप ब्लॉग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स पे डेटा जो है वो अलग आ रहा है. ठीक है, सो देयर कैन बी अ वेरी लार्ज वैरायटी of big data. Okay. The ever expanding masses of data are only part of the challenge facing professionals and researchers. A further part is the integration of different kinds of data, from fine grained tracking of individual behaviors and movements with environmental measure data yielded through surveillance and data balance, crawling through interconnected data sets, large administrative databases and so forth. अब यहाँ पे वो जब मैं बात की थी, ठीक है, जो वैरायटी ऑफ डेटा की, ठीक है, उसको अब यहाँ पे वो एक्सटेंड कर रहा है. तो कि जनाब के
जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है इंडिविजुअल बिहेवियर को जो है वो जब आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है, दिस इज अनदर काइंड ऑफ डेटा दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बिग डेटा, ठीक है। Similarly, there can be so many other types of data that can be part of the big data. Okay, big data are collected through three main means that are interconnected with most professional activity. ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है कि जो बिग डेटा है, बिग डेटा को जो है वो कलेक्ट जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो उसने कहा जनाब कि अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बिग डेटा जो है वो तीन तरीकों से जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। या तीन तरह का जो है वो डेटा हो सकता है जिसको हम बिग डेटा कह सकते हैं। पहला डेटा जो है वो है जनाब डायरेक्टेड डेटा। Directed data are produced through intentional surveillance operated by humans, such as patient record information accumulated through a range of measures, tests, electromagnetic scans, बायोटेक्निकल फीडबैक एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया जनाब आपका डायरेक्टेड डेटा। तो सेकंड टाइप ऑफ डेटा है वो है जनाब ऑटोमेटेड डेटा। नाउ व्हाट इज ऑटोमेटेड डेटा? Automated data are accumulated through embedded sensors in objects, environmental measuring instruments, click stream measuring people's web activity, scanners that read objects, and machines that record their own uses as well as the items passing through them, such as diagnostic machines, ठीक है। तो ये वो तमाम डेटा है कि जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड डेटा, ठीक है। ये डेटा ऑटोमेटिकली जो है कलेक्ट हो रहा है, इसमें जो है वो आप ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत जो है वो नहीं है। The third type of data or the third source of big data is volunteered data, ठीक है, that emerge from content posted on the web or social media, such as teacher, student, or patient professional Facebook pages intended to share information and professional services. Crowdsourcing, such as digital photos and postings that police agencies encourage the public to submit, or personal information yielded freely onto the web by people, such as through registration for free services and software. तो ये वो तीन सोर्सेज है कि जिनके थ्रू जो है वो बिग डेटा जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन तमाम टाइप्स ऑफ डेटा को देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि बेसिकली ऑल दीज टाइप्स ऑफ डेटा, ओके, इज अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और इसमें अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है इसको जो है हमने पहले ही जो है डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। नाउ algorithm in software code are the actors that process these data. Digital analytics have become a key means of performing knowledge through tagging, classification, standardization, calculation, circulation, and visualization. And these requires codes and algorithm. तो अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट टर्म उसने इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया जनाब एल्गोरिदम, ठीक है। इन वेरी सिंपल टर्म वी कैन से द एल्गोरिदम इज द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिजिटल एनालिटिक्स, ठीक है। अब डिजिटल एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जो बात कर रहे हैं कि जनाब के नॉलेज जो है, ठीक है, या नॉलेज मैनेजमेंट को जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट बेसिकली आप कह लें सब प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इन परफॉर्मिंग नॉलेज, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? टैगिंग है, क्लासिफिकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, कैलकुलेशन है, सर्कुलेशन है, एंड विजुअलाइजेशन है, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं कि जो कि डिजिटल एनालिटिक्स में जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। ओके जनाब, अब नेक्स्ट जो है जो आर्टिकल बात करता है वो बात करता है हाउ डिजिटल एनालिटिक्स आर ट्रांसफॉर्मिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन रेंज ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। पहली एग्जांपल वो देता है या पहली जो चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करता है वो बात करता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल एनालिटिक्स। Predictive analytics is used to assess conditions and prescribe remedies for students, patients, clients, to produce client and professional service records, e-learning systems, and even to plan provisions in health, social care, education, engineering, and law, ठीक है। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है that it is used to assess
the existing conditions and then suggest the remedies for certain conditions. ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल जो है वो उसने सेक्टर्स की जो है एग्जाम्पल देके उसने बात की है. ठीक है, सिमिलरली वो बात करता है in medicine, new consumer diagnostic mobile technologies are moving rapidly from prototype to market. ठीक है, for instance, remote scope claims to offer at home diagnosis of ear infection. ठीक है, तो अब ये जो तमाम टेक्नोलॉजी की जो हमें बात हो रही है, ठीक है, इनके पीछे या इनके बैक साइड पे जो एनालिटिक्स काम कर रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे वो कहते हैं, रिसर्च से जो बात कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि जनाब कि अप टू 80% ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस इन फ्यूचर विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर्स. The argument is that such technology delivered data driven processes are more reliable and consistent than services performed by human professionals. ठीक है, अब ये कहता है जनाब कि रिसर्चर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि 80% ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस जो है फ्यूचर में वो कंप्यूटर जो है परफॉर्म करेंगे. ठीक है, और वो कहते हैं कि जनाब कि वो क्यों करेंगे, आर्गुमेंट क्या है कि जनाब वो कहते हैं कि इसकी वजह जो है वो ये है कि ये जो कंप्यूटर ड्रिवन जो आपकी जो टेस्टिंग है, ठीक है, सिंस इट इज टेक्नोलॉजी डिलीवर्ड बाय टेक्नोलॉजी और डिलीवर्ड बाय यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इट इज डेटा ड्रिवन. ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि इस डायग्नोसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं एज कम्पेयर टू द डायग्नोसिस डन बाय ह्यूमन प्रोफेशनल. इस चीज़ को हम आगे चल के देखेंगे कि जो ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आर्गुमेंट जो है, ये आर्गुमेंट इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं है. इसकी वजह जो है वो ये है कि एनालिटिक्स जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है उन रिजल्ट्स में कॉन्टेक्स्ट नहीं होता. ठीक है, सिमिलरली फॉर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट जब आप रिसीव करते हैं तो उसमें रिपोर्ट के नीचे जो है वो एक चीज़ लिखी हुई होती है कि जनाब ये जो रिजल्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, जो वैल्यूज आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, these values must be interpreted by a doctor. ठीक है, उसकी वजह जो है वो ये होती है कि जनाब के सिर्फ एक टेस्ट की रिपोर्ट देख के जो है वो आप कोई पर्टिकुलर जो डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते. ठीक है, कि कंडीशन के फॉर एग्जाम्पल का जो पेशेंट है उसको क्या पर्टिकुलर जो है वो इलनेस हो सकती है, राइट. A doctor needs to see the report and a doctor needs to combine the results of a particular test along with the other test results to come up with an assessment कि जनाब जो पेशेंट है, पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम क्या है, उसकी इलनेस क्या है. ठीक है, एक यूनिलैटरल डिसीजन जस्ट बाय यूजिंग द कंप्यूटर्स वो आप नहीं ले सकते बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इज एब्सेंट. Remember, the context is absent when we are talking about the results or the information provided by the digital analytics. ठीक है, the contextualization is added by human professional so that the more informed decision can be made. और ये वही चीज़ है कि जो कि हमने पहली रीडिंग में हाईलाइट की थी कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग में या अगर हम डिसीजन मेकिंग इन जनरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिजिटल एनालिटिक्स ने ऐसा नहीं किया है कि उन्होंने ह्यूमन इंट्यूशन या ह्यूमन एक्सपीरियंस को टोटली रिप्लेस कर दिया है. डिजिटल एनालिटिक्स ने ह्यूमन इंट्यूशन और जो जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको हेल्प प्रोवाइड किया, उसको ऑगमेंट किया है. ठीक है, सो दैट ह्यूमंस कैन मेक बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस. ठीक है, इंट्यूशन और एक्सपीरियंस को डिसीजन मेकिंग में से डिजिटल एनालिटिक्स ने रिमूव नहीं किया है. डिजिटल एनालिटिक्स ने इंट्यूशन और एक्सपीरियंस को ऑगमेंट किया है सो दैट better decision can be made. Kindly remember this fact. Okay. In healthcare, precision medicine becomes possible as ASD claims it can take responsibility for a range of services, including designing clinical pathways, precision medicine, and पेशेंट मॉनिटरिंग. अब वो यहाँ पे वो उसी चीज़ को एक्सटेंड कर रहा है कि मेडिसिन में जो है या जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें एनालिटिक्स जो है वो किस तरह से जो है इस्तेमाल की जा रही है और की और जिस इसके जो है प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. सिमिलरली वो बात करता है जनाब के लीगल इंडस्ट्री की. ठीक है, प्रोफेशनल लीगल सर्विसेज हैज बीन proliferating into many specialized data-driven processes with a corresponding rise of technology-driven entrepreneurs, legal technologists, legal knowledge engineers, project managers, and risk managers, online legal services. ठीक है,
that make legal service more convenient, accessible, and affordable by removing the need to meet with professional lawyers or solicitors and the associated cost. सिमिलरली वो बात करता है कि अगर आपके लॉ के प्रोफेशन में जो डिजिटल एनालिटिक्स है, ठीक है, उसको जो है वो इंक्रीजिंगली इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो आपकी जो लीगल सर्विसेज हैं उनको जो है वो मोर कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर भी हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जो डिजिटल एनालिटिक्स का जो यूज़ है, ठीक है, वो यकीनन बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आपके लिए जो है वो कन्वीनियंट कर देता है, एक्सेसिबल कर देता है, अफोर्डेबल कर देता है, ठीक है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं या फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन की बात करते हैं या कॉम्प्लेक्स डिस्कशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो जो ह्यूमंस को जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन अ नटशेल वी कैन से कि अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को एड तो प्रोवाइड करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती सो फार अभी तक, ठीक है। फ्यूचर वी डोंट नो। The second type of analytics the article talks about is people analytics. Okay. Now, what is people analytics? People analytics refers to the use of big data and algorithms or software for the purpose of recruitment. Okay. Now, what this people analytics, another type of digital analytics, can do for us in human resource management? It can predict which employees are likely to become retention problems, alerting management so that preemptive action can be taken. Okay? Forward looking predictive models are developed to forecast and act upon other people management issues and opportunities before they arise. A recruitment algorithm is used to predict which employees are more likely to succeed after hiring, both to shorten the total interview time and to ensure that the selection panels do not miss top talent. This approach is deemed to make recruitment more scientific. There is even an algorithm to solve diversity problems, analyzing the root causes of weak diversity and presenting actions to address them. It is yet to be established if or in what ways these analytics add to existing recruitment practices, but the promise of better approaches is certainly alluring. अब वो यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट उसने आपको जो एग्जांपल्स दे दिए कि किस तरह से जो है वो पीपल एनालिटिक्स जो है वो आपके ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन मैनेजमेंट को इनहेंस कर सकती है, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा बना सकती है। ओके, रिक्रूटमेंट में उसने आपको बता दिया, इवन उसने ये बता दिया है कि जो डिजिटल एनालिटिक्स या पीपल एनालिटिक्स जो है, ठीक है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल डाटा को एनालाइज करके आपको जो डाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स फॉर एग्जांपल देयर कैन बी वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल जेंडर डाइवर्सिटी, ठीक है, कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें मर्द और औरत का जो है वो रेशियो जो है वो क्या है, ठीक है, एंड वी नो दैट the these gender issues give birth to various gender related problems. So अगर हम इन डाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, समझ सकें ज़्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है डाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी कर सकें, तो नो डाउट के वी कैन परफॉर्म बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑलराइट, okay. Now the second sector, the or in fact the third sector the article talks about is the finance sector or the finance professionals. Take it. In the finance profession, software algorithms have already eclipsed most transactions, speeding up the process to the point where computers trade shares in thousands of a second. In a study of high frequency trading, Lewis 2014 shows that the principal actors in well over 90% of stock market trades are computers. Software codes can sniff a sale before it is completed, even detecting others' algorithms in the market, then buying the shares to make a profit. Nanoseconds are crucial to making profit, such that not only the algorithms but also access to high-speed fiber optic differentiate success, not professional skill. Humans are not only mostly extraneous to the activity, but often unable to see or follow the process, let alone monitor or learn from it. फाइनेंस के सेक्टर में वो कह रहा है कि जनाब ये जो एनालिटिक्स है और जो कंप्यूटर का जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा है कि
कि हम ये कह सकते हैं कि 90% ऑफ द ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट इज डन बाय द कंप्यूटर्स, ठीक है। और इस प्रोसेस में वो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कह रहा है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर जो है उस तमाम के तमाम ट्रेड को जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो होता जो है वो ये है कि जब कंप्यूटर्स कोई ट्रेड डिसीजन लेते हैं, ठीक है, these trade decisions are actually very very fast. So even a nanosecond you can understand, a very very small portion of a second, ठीक है। कहता है कि नैनो सेकंड इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्रॉफिट, कि जी अगर आपने डिसीजन लेने में या ट्रेड करने में जो है नैनो सेकंड की भी देर कर दी तो यू विल नॉट मेक अ प्रॉफिट, रादर यू विल एक्चुअली इनकर अ लॉस। तो यहाँ पे वो कहता है कि जनाब के जो ट्रेड डिसीजन है, जो फाइनेंस डिसीजन हैं, उसमें ह्यूमन स्किल, यानी प्रोफेशनल स्किल से ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात की है कि जनाब फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर जो है वो कितना फास्ट है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कितना फास्ट है। क्योंकि जाहिर है कि आपका कंप्यूटर जितना फास्ट होगा वो डिसीजन उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ले सकता है। और सिंस ऑल दी फाइनेंशियल मार्केट्स आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो फास्ट नहीं है, इसका मतलब जो है वो ये है कि वो जो आपने डिसीजन लिया है, ठीक है, वो डिसीजन जो है वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर आपने वो डिसीजन जो है वो आपने देर से लिया, किसी दूसरे ने डिसीजन पहले लिया, इट मीन्स दैट द अदर पार्टी विल विन, ठीक है। सो एंड the system is so much complex, ठीक है, कि आपके लिए उस प्रोसेस को फॉलो करना अब बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। इस बात को तो आप छोड़ ही दें कि आप उस प्रोसेस को जो है वो समझ सकें या उस प्रोसेस को जो आप लर्न कर सकें। सो दिस इज द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल एनालिटिक्स ऑन द फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। अर्बन प्लानिंग की वो बात करता है, तो अर्बन प्लानिंग में वो कहता है कि जनाब आपके जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है। फोकस जो है वो ये है, चैलेंजिंग अर्बन प्लानिंग प्रोफेशनल्स टू अडेप्ट digital technologies to make cities more innovative and productive। वो कहता है कि अर्बन प्लानिंग में डिजिटल एनालिटिक्स जो का जो बेसिकली जो ट्रेंड ला रही है या जो प्रेशर ला रही है अर्बन प्लानिंग प्रोफेशनल पर, वो ये है कि नाउ दे शुड अडेप्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सो दैट दे कैन मेक देयर सिटीज मोर इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव। यहाँ पर एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है स्मार्ट सिटीज का, ठीक है, स्मार्ट सिटीज का, इंटेलिजेंट सिटीज का, मीडिया सिटीज का, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, these concepts involve the use of technologies, ठीक है, to make the cities more productive, more innovative, okay। Then uh, there are these are the sort of issues emanating from digital analytics and professional work that ought to provoke more scrutiny, ठीक है। Professional practice increasingly can draw from abundant sources of diverse, real-time, fine-grained, formerly difficult to access data assembled with the state-of-the-art new technologies that capture, manipulate, and curate this information in ever more accessible ways. At the same time, these examples show challenges. Everyday practice is changing in ways that may not be fully recognized. Some work is becoming tied to and even dictated by databases and their categories. Notions of place are being transformed. Multitudes of data required careful interfaces, transfer points, and scrutiny to ensure that important nuances are not distorting or disappearing altogether. Some professional knowledge work is being delegated to digital technologies. तो अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, ठीक है, वो किस तरह से जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है वो कह रहा है कि जी कुछ जो आपका जो काम है, ठीक है, वो कुछ काम आप खुद नहीं करते, ठीक है वो काम जो है वो आप कंप्यूटर से करवा रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी की जो है इंपॉर्टेंस जो है वो डैमेज हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, ठीक है, एंड यू आर इन अ पर्टिकुलर सिटी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जनाब के आप जो है वो उसी शहर के जो है वो किसी वकील के पास या किसी डॉक्टर के पास जो है वो एडवाइस लें, ठीक है। digital technologies and digital analytics has made it possible that you can seek the advice from people sitting in the other cities, ठीक है। सिमिलरली आपका जो कुछ काम है या जो कुछ प्रोफेशनल नॉलेज है, ठीक है, वो जो है वो आपने ट्रांसफर कर दिया डिजिटल टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने बात की जनाब मेडिकल डायग्नोसिस की, ठीक है, तो यकीनन सारा का सारा काम जो है वो आपने टेक्नोलॉजी के हाथ में तो नहीं दे दिया या डिजिटल एनालिटिक्स के थ्रू तो आप परफॉर्म नहीं करते, बट यू हैव गिवन सम
part of it to the digital analytics. ठीक है जी. Okay. Moving forward. Okay. For software to work, relevant digital databases need to be available. अब यहाँ पे जो एक चीज़ हाईलाइट कर रहा है, वही हाईलाइट कर रहा है कि जनाब के अगर सॉफ्टवेयर ने जो इफेक्टिवली काम करना है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो जो डिजिटल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, वो अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है. और डिजिटल डेटाबेसेस में वो कहता है कि जनाब के ये वो डेटाबेसेस हैं कि जिसमें जो है वो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो आपने स्टोर करना, रिकॉर्ड करना, सो दैट इट इज अवेलेबल फॉर एनालिसिस पर्पसेस. ठीक है. वो कहता है कि यहाँ पे अब दो चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस डिजिटल डेटाबेसेस. ठीक है. एक तो क्लासिफिकेशन और दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. कि क्योंकि ये डेटाबेसेस जो है या जो क्या लेंगे जो स्टोर्स ऑफ डेटा है, ठीक है, इन्होंने जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जो है वो स्टोर करना है. ठीक है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. क्योंकि डेटा तो अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, बट स्टिल वी नीड सम सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. अगर किसी भी किस्म की कोई क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू storing this data into digital databases, then the analysis of this data will become very much difficult. ठीक है. Then okay. Algorithms are elusive and almost mysterious, inscrutable. ठीक है. अच्छा, ये जो पर्टिकुलर टर्म मैंने इस्तेमाल की है, ठीक है, इनस्क्यूरेटेबल. इनस्क्यूरेटेबल का मतलब जो है वो ये समथिंग दैट यू रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट. ओके. तो रीडिंग जो है बार बार ये बात जो है वो कह रही है कि जो वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको जो है वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना जो है इन मैनी टाइम्स जो है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. ये बात हमने पहले भी कही थी कि ये जो सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग है, ठीक है, उसको जो है वो फॉलो करना ही जो है वो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए. इस बात को तो छोड़ ही दें कि हम इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें कि जनाब कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो काम किस तरह से करता है. इन मैनी अ टाइम द वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स. ठीक है. कि हमें ये तो पता है कि इस ब्लैक बॉक्स में हम इनपुट क्या दे रहे हैं और इस ब्लैक बॉक्स से आउटपुट क्या आ रही है. ठीक है. लेकिन इस बॉक्स के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एंड देयर इंटररिलेटेड रिलेशनशिप्स, ठीक है, it is not always completely understood. Okay. Digital analytics often work from simplistic premises. ठीक है. That problems are technical, comprise knowable, measurable parameters and can be solved through technical calculations. ठीक है. अब वो कह रहा है कि जनाब के जो डिजिटल एनालिटिक्स है, ठीक है, ये दो तीन प्रेमाइसेस के ऊपर काम करती है. पहला प्रेमाइस क्या है कि जो प्रॉब्लम आप डिजिटल एनालिटिक्स के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम जो है वो टेक्निकल है. ठीक है. दूसरी चीज, जिस ये जो प्रॉब्लम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर नोएबल और मेजरेबल पैरामीटर्स इन्वॉल्व है. ठीक है. याद रखिएगा कि अगर आपके पास जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके जो पैरामीटर्स हैं जिसको आपने इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो मेजरेबल नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना डिजिटल एनालिटिक्स के थ्रू आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. एंड नंबर थ्री, दिस टेक्निकल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू टेक्निकल कैलकुलेशंस. ठीक है. क्योंकि ऑफ कोर्स डिजिटल एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो देयर मस्ट बी सम टेक्निकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व. Complexities of ethics, purposes, and values, ambiguities and tensions, culture and politics of knowledge, and even the context in which data are collected are not necessarily part of the calculation. अब यहाँ पे ये वही चीज़ है कि जो कि मैंने आपको जो है पहले मैंने आपको बताई थी. ठीक है. कि डिजिटल एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या चीज़ें जो है मिसिंग है या क्या चीज़ डिजिटल एनालिटिक्स के प्रोसेस में शामिल नहीं है. क्या क्या शामिल नहीं है? एथिक्स, पर्पस एंड वैल्यूज, एम्बिग्यूटीज एंड टेंशंस, कल्चर एंड पॉलिटिक्स. ठीक है. अब ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं कि जो कि डिजिटल एनालिटिक्स में आप अकाउंट नहीं करते. ठीक है. इनको आप शामिल नहीं करते. तो यही वजह है कि जब डिजिटल एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उस इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉन्टेक्स्ट नहीं होता. ठीक है. मिसाल के तौर पर जो है वो अगर आप डिजिटल एनालिटिक्स को जो है आपने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस का इस्तेमाल करें या फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस के लिए आप इस्तेमाल करें,
तो डिजिटल एनालिटिक्स जो है बेसिकली आपको नोएबल मेजरेबल पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, वो आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि जनाब के कौन से आपके लोग जो हैं वो स्टार परफॉर्मर्स हैं और कौन से आपके लोग जो हैं वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन इस परफॉर्मेंस असेसमेंट के अंदर अभी कॉन्टेक्स्ट शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर जो है वो अगर किसी एक शख्स के जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी आ रही है, ठीक है, तो हमें ये भी देखना होगा कि जनाब व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस दैट व्हाई दिस पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग एडिक्वेटली। मे भी हो सकता है कि जनाब के कोई फैमिली इश्यूज हों, ठीक है, कोई एनवायरमेंटल इश्यूज हों, ठीक है, कि जो के बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जब वो शख्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके परफॉर्म कर रहा है तो वो बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कंडीशंस हैं वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन डिजिटल एनालिटिक्स का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को जो है वो असेस कर रहा है कि परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो क्या है, ठीक है। तो व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द डिजिटल एनालिटिक्स और द पीपल एनालिटिक्स विल बी प्रेजेंटेड टू द ह्यूमन बीइंग विल नीड टू यूज देयर इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस and they will need to put the context in the results of the digital analytics to make more informed decision, ठीक है। वो सिंपली डिजिटल एनालिटिक्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए लोगों को जो है वो प्रमोट नहीं कर सकते या लोगों को जो है फायर नहीं कर सकते, ठीक है। वंस अगेन आई रीट्रेट the technology or the digital analytics is an aid to your decision making, ठीक है, it is not a replacement of the human intuition and experience, okay, because human intuition and experience brings the context in the digital analytics, ठीक है। जब तक ये कॉन्टेक्स्ट आप ऐड नहीं करते उस वक्त तक डिजिटल एनालिटिक्स जो है वो आपको हेल्प आउट नहीं कर सकती, ठीक है। ओके दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, द डीप कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ डिजिटल एनालिटिक्स, ठीक है। और इसके साथ जो वो रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, वो हायर एजुकेशन सेक्टर की मिसाल देके आपको समझा रहा है कि किस तरह से जो है ये डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ डिजिटल एनालिटिक्स जो है ये आपके लिए इश्यूज प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद इस पैराग्राफ है व्हाई लेक्चरर्स कैन कोलैबोरेट विद लर्निंग एनालिटिक्स, ठीक है, सेम थिंग इलेबोरेट किया है कि हायर एजुकेशन में अगर ये डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होती है यूजिंग डिजिटल एनालिटिक्स तो उसको क्या इशू हो सकते हैं उसको आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस एसोसिएटेड विद रिसर्चिंग एल्गोरिथम्स, ओके। अब वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम, ठीक है, जो डिजिटल एनालिटिक्स में आप इस्तेमाल करते हैं टू एनालाइज द डेटा, ठीक है, उसके साथ जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं जिनकी हमने पहले ही बात की थी और जिनकी हम दोबारा बात कर रहे हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सोर्स कोड इज हिडन एंड ब्लैक बॉक्स, ठीक है, जो आपका जो एल्गोरिथम है, ठीक है, उसका जो कोड है, उसकी जो वर्किंग है, इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स। क्या चीज़ आप इनपुट दे रहे हैं, क्या चीज़ आउटपुट आ रही है, ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके बाद अंदर क्या प्रोसेसिंग चल रही है यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, ठीक है। Algorithms are woven into technical systems that are heterogeneous and embedded, ठीक है, they are not fixed and performative and they are out of control। तो ये दो चार पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिनकी बात करता है, ठीक है। डिस्पाइट ऑल द बेनिफिट दैट द डिजिटल एनालिटिक्स परफॉर्म्स, the software that we use to analyze this data and come up with the information, ठीक है, the software has many associated challenges. Moving forward, the article also identifies a series of problems with the found data, such as people web searches। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जो पहले तुमने सॉफ्टवेयर की बात कर ली कि जो डिजिटल एनालिटिक्स में हम यूज कर रहे हैं टू एनालाइज द डेटा, अब वो कहता है कि बिसाइड सॉफ्टवेयर वो जो डेटा है जिसको आप एनालाइज करते हैं यूजिंग द डिजिटल एनालिटिक्स, उसके अंदर भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, ठीक है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? मिसाल के तौर पर particular platforms and sources are used frequently and disproportionately, ठीक है, for example Twitter to generate data sets without adequate consideration of their structural biases, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है वो आपने किसी एक सोर्स का डेटा, मतलब जो ट्विटर का जो डेटा है वो आपने जो है अपने एनालिसिस में जो है वो उसको आपने ज़्यादा वेटेज दे दिया। मिसाल के तौर पर अगर मैं पब्लिक सेंटिमेंट को एनालाइज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब अगर मिसाल के तौर पर जो है किसी एक प्लेटफॉर्म के डेटा को मैं ज़्यादा वेटेज दे दूँ और दूसरे प्लेटफॉर्म के डेटा को जो है मैं कम वेटेज दे दूँ, तो उस सूरत में मेरा जो एनालिसिस होगा उसको जो रिजल्ट्स होंगे वो उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे, ठीक है। Dependent variables such as hashtags are often used without adequate cautions. Big data often aggregates diverse online
actions such as click, links, retweets, ठीक है. Big data typically capture node to node interaction. So these are all the different kinds of problems that data can have, okay, and that you need to watch for before you can use this data into digital analytics. Another important concept that the article talks about is called the echo chamber effect. Echo chamber effect का जो nutshell मतलब है वो ये है कि the source for data analytics is often the product of big data. ठीक है, तो होता क्या है जनाब कि जो बिग डेटा का जो सोर्स है, ठीक है, नॉर्मली ये वही चीज़ है कि जो कि बिग डेटा के जो का जो एनालिसिस है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो होता क्या है जनाब कि सेम डेटा दैट इज़ यूज्ड इन द डिजिटल एनालिटिक्स, ठीक है? और इसके बाद जो है वो जिसको रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं, फ्यूचर में जो है वो आप डिजिटल एनालिटिक्स के रिजल्ट्स को एक नई सोर्स ऑफ डेटा कंसिडर करते हैं, ठीक है? और उसके बाद उसको जो है वो डिजिटल एनालिटिक्स में जो है वो आप रीयूज़ करते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि जनाब कि अगर ये डेटा प्रॉब्लमैटिक हो गया या उस डेटा में वो इश्यूज़ हुए कि जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, नतीजा जो है वो ये होगा कि जनाब कि एक एरोनियस डेटा को जब आप अपने एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएँगे उसको फिर दोबारा कंसिडर करेंगे एज़ अ न्यू सोर्स ऑफ डेटा। सो व्हाट विल हैपन कि जो प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट करती हैं या जो एरर्स एग्ज़िस्ट करते हैं, वो एरर जो हैं वो सिंपली इको होते रहेंगे या कह लेंगे जनाब कि दे विल बी रीअकरिंग। सो वी नीड टू इंश्योर कि जनाब कि वो जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस डेटा के मतलब ह्यूमन जो है उनको अपनी जो इंट्यूशन है या जो इंटेलिजेंस है उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो डेटा का जिसको जो है वो हम अपने सॉफ्टवेयर को फीड कर रहे हैं उस डेटा के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि अगर डेटा के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई तो प्रॉब्लम जो है वो ये होगा कि वो जो एरर्स उस डेटा के अंदर मौजूद है, ठीक है, दे विल नेवर बी रिमूव्ड, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट डिजिटल एनालिटिक्स आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो इन्फॉर्मेशन कभी भी जो है वो वैसी नहीं होगी कि जैसी आपको अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके जनाब, देन the article talks about some questions about the professional responsibility that have arisen because of the digital analytics, okay. So for example, how should we think about professional responsibility and accountability, ठीक है। अब ऑथर कहता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजिटल एनालिटिक्स के आने के बाद, ठीक है, अब जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, उसका क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेडिकल डायग्नोसिस की हम बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस में जो है वो अगर हम सारा का सारा जो काम है वो अगर हम कंप्यूटर्स को दे दें, ठीक है, तो उस सूरत में जो है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मतलब फॉर एग्जांपल हमने जो है वो ईयर इन्फेक्शन की हमने बात की, ठीक है, हम कंप्यूटर को डिसाइड करने देंगे जनाब कि ईयर इन्फेक्शन जो है वो अगर डायग्नोस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। और लेट्स से फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर वाज रॉन्ग और हमने जो ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दी फॉर ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, उससे जो है उसका केस जो है बिगड़ गया, तो उस सूरत में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम किसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, क्या उस डॉक्टर के ऊपर डालेंगे जिसने कंप्यूटर को इस्तेमाल किया और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर डायग्नोसिस के ऊपर ही 100% रिलाई करते हुए जो ट्रीटमेंट थी वो उसने सजेस्ट कर दी उसको पेशेंट को, या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेयर की जाएगी, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द very critical question related to the professional responsibility when it comes to the digital analytics, ठीक है। Then critical questions about powerful data visualization and persuasive apparent precision of solutions produced by data analytics, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि जनाब के डिजिटल एनालिटिक्स की, ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि जनाब इसमें हमारे पास जो है कौन-कौन से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट आर द एल्गोरिथम दैट वर्क, व्हाट हैज़ बीन रेंडर्ड इनविजिबल इन द कैटेगराइजेशन, व्हाट डेटा सेट्स आर बीइंग मर्ज्ड, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जिनको हमें देखना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल एनालिटिक्स में जो है वो जब डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है। Similarly, until professionals learn to collaborate effectively with computer scientists and vice versa, digital analytics may well be designed within the vacuums of technological innovation. अब ऑथर हमें बताता है कि अगर आपने डिजिटल एनालिटिक्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो उसको डिजिटल एनालिटिक्स की जो है कंप्लीट नॉलेज हो या जो अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। उसकी वजह जो है वो ये है कि डिजिटल एनालिटिक्स इज समथिंग विच फॉल्स इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो हर आदमी जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो जो ज़रूरत है यहाँ पर वो इस बात की है
कि जो लोग हैं अगर कंप्यूटर साइंस का डोमेन नहीं है तो वो प्रोफेशनल के साथ और कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ जो है वो कोलैबोरेट करें, ठीक है। इस कोलैबोरेशन का नतीजा जो ये निकलेगा, फॉर एग्जांपल के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, दे मे नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द बिजनेसेस प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन। They know how to code, they know how to make software work, ठीक है। So if you collaborate with them, then this collaboration can actually brings some much better results of digital analytics rather than कि आप ट्राई करेंगे जी मुझे मैं डिजिटल एनालिटिक्स को जो है मैं सीखूंगा और उसके अंदर जो है एक्सपर्टीज मैं जनरेट करूंगा, ठीक है। then there are the article talks about some of the requirements of professional education, ठीक है, कि जनाब जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, ठीक है, उन्हें जो है वो किन चीज़ों को जो है वो समझने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू बेटर यूटिलाइज द digital analytics across various industries, ठीक है जी। So that concludes the discussion of the second reading, okay. And now after we have discussed both the readings of digital analytics, it's time for us to move to the discussion of the case study of today's topic. And the study of today's topic is the title is CDK Digital Marketing Addressing Channel Conflict with Data Analytics.